All right. Good morning, everyone. Oh, sorry. Good evening, actually. Morning, Tarani. We'll wait for a couple of more minutes for everyone to join in. Then we'll begin. Yes. Hi. Good evening. Good evening, Rugved. Good evening, Shivank. All right. Great. So, कितने students ने join कर लिया है? Good. ठीक है. I think most of the students have joined in. Now, last class में मैंने आप लोगों को कुछ questions दिए थे to practice based on Bohr's model of atom. So, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं. ठीक है. नाउ कुछ कॉमन डाउट्स होंगे उसमें. सो प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो इजी रहे होंगे. मैं थोड़ा एंड से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं. सो 35 एंड 36 आई थिंक दिस इज समथिंग फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है. R is proportional to n square. So as we move away from the atom, the distance between the consecutive orbits, it increases. And when it comes to energy, which is inversely proportional to 1 by n square, so you will find that as you move away from the atom, right, the energy gaps between consecutive orbits decreases. ये हमने energy diagram पढ़ते हुए discuss भी किया था. Then I think 33 and 34th, ठीक है, they 33 is something that we did in the class, right? 34th is similar to that only, that angular acceleration will be proportional to force only. So proportionality to force जो निकाला था हमने z cube upon n raised to the power of 4, the same goes for the angular acceleration as well. And you substitute it accordingly, put the value of z and l, you will get the relationship. ठीक है. 32 में आई थिंक आप लोगों को डाउट रहा होगा. Those who would have attempted 32, maybe they would have not got the answer right.
बट राइट, आप लोगों को जैसा मैंने बताया था दैट 32, ये हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम आज पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ. देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन 32nd क्वेश्चन विच आई डिस्कस टुडे. आप लोगों ने कर लिया होगा तो वो अच्छी बात है, बट उसके पीछे कुछ extra points हैं which I would want to also highlight. So let me teach atomic spectrum first and then I will talk about it. Then 31, 30 तो हमने क्लास में करा था. 31 is also on the same lines where kinetic energy का रेशियो लेना है. Just एक छोटा सा twist था in the question in the end, in the 31st question, that total energy जो है वो minus of kinetic energy होता है. So you add a negative sign to what you got as the kinetic energy का आंसर. ठीक है. Then 29th question, yeah, 29th question is also a good question जिसमें कई बार students का doubt रहता है. So 29th question में angular momentum का proportionality बताया था with MVR. ठीक है. Now angular momentum का formula ये MVR आपके सामने है, but इसमें if I use this formula, ठीक है, ये formula में use करके if I comment this, then it is absolutely incorrect. Why? Because when I say L is proportional to V, then M and R should be constant. ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा, बट R कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है. R is not a constant. ठीक है. Similarly, when you would say L is proportional to R, this is also incorrect because then V is not constant. So you can't use this. This will be incorrect. What you can also think of is that the angular momentum was quantized as per Bohr's model of atom, and I can also write L is equal to NH upon 2 pi. ठीक है. जो MVR equal to NH upon 2 pi था वो मैंने use करा, and now I can write L is directly proportional to N. This is correct. Why? Because H and 2 pi is constant. So I can write the direct proportionality. And now if I remember, R was directly proportional to N square, or I can say that root of R is directly proportional to N, and इन दोनों को मैंने relate कर दिया. So इससे क्या समझ में आएगा that L is also directly proportional to root N. ठीक है. हाँ, Arpit, you are right. We can say L is directly proportional to V into R because M is constant. ठीक है. अगर मैं ऐसा लिख दूंगा L is directly proportional to VR तो ये चलेगा क्योंकि M is constant. ठीक है. बट ऐसे partially नहीं लिख सकते because when something is directly proportional to something, the other things should be constant. ठीक है. That's why 29th question was slightly tricky. ठीक है. हाँ. 28 तो fairly doable question है. 28 में ionization potential word use किया जा रहा है, so that is the same as ionization energy. ठीक है. Ionization potential was something that was used in olden times. मतलब obsolete term हो गया है अभी. We don't use it anymore. So अभी कहीं पर ionization potential मिले या excitation potential मिले तो you substitute it saying it is ionization energy or excitation energy. ठीक है. सो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जा रहा है. सो ग्राउंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी लेके जाना है. ठीक है. एंड अगर एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जा रहा है मतलब उस एक्साइटेड स्टेट विच इज n इक्वल टू 2 से वी विल हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉन टू n इक्वल टू इंफिनिटी.
ठीक है. So accordingly you substituted the formula of energy. अभी फार अवे तो एनर्जी जीरो होता है. ठीक है, वैसे मैंने ऐसे लिख दिया 1/∞². So 1/∞² will be something which will be 0. ठीक है. So I use the formula 13.6 z² by n². ठीक है. Then 27 is fairly straightforward. 26th में, ठीक है, आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ऋग्वेद आपका आंसर शायद इसलिए नहीं मैच कर रहा होगा बिकॉज कैलकुलेशन में आपने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया होगा. बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली. ठीक है. फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज 2πr/v. सो अब सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप v एंड r निकाल दो. जस्ट इंश्योर दैट ये सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है ताकि आपका आंसर भी फिर ऐसा यूनिट्स में आए. दैट्स द ओनली कैच. अच्छा 25th बोल रहे थे क्या तुम? हाँ. सो 25th के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में यू नो व्हेन वी वर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट क्लास मैंने आपको ग्राफ्स का इंफॉर्मेशन दिया था, राइट? दैट व्हेन यू हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन v एंड z तो कैसे उनके बीच में ग्राफ रहेगा. इट विल बी अ लीनियर ग्राफ. व्हेन यू हैव एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन v and n तो द ग्राफ विल बी अ हाइपरबोलिक ग्राफ. और इफ आई एम प्लॉटिंग v वर्सेस 1/n, v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना 1/n के, तो एक लीनियर ग्राफ रहेगा. ठीक है. डी ऑप्शन में जो था ग्राफ, डी ऑप्शन का ग्राफ कैसा था? डी ऑप्शन का ग्राफ वाज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप. तो वो कब होता था? व्हेन y वाज प्रोपोर्शनल टू -x. दैट इज व्हेन यू यूज दैट ग्राफ. ठीक है. तो यहाँ पर वैसा रिलेशनशिप है ही नहीं. So that is why the answer was in this manner. मैं एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको ऑन द ग्राफ फ्रंट सो दैट थोड़ा सा और क्लैरिटी रहेगा. ठीक है. देन आई थिंक मे बी वन मोर क्वेश्चन जहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा सा कुछ डाउट रहा होगा इज द 21st क्वेश्चन. यहाँ पर एक्चुअली फिट इनसाइड बोला है तो इनसाइड मतलब स्ट्रिक्ट लेस देन 2 रहेगा, नॉट इवन लेस देन इक्वल टू. ठीक है. तो z has to be greater than 16. So the only option that was there was not even 16, greater than 16. That was z equal to 25. So that became the reason why we had that as an answer. ठीक है. आई थिंक इसके अलावा और कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए. ठीक है. हाँ, DPP 8 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. DPP 8 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं क्या कुछ? कौन सा? क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 8. अच्छा तुम DPP 8 मतलब मोल कंसेप्ट का कह रहे हो क्या? हाँ DPP 13 भेजा था ना मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का. हाँ 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 राइट. सो ओके, हर्ष पूछ रहा है DPP 13 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए. हाँ ये एक्चुअली दिस इज अ रिजल्ट, मतलब इट इज नॉट अ रियली इम्पोर्टेंट रिजल्ट. मतलब एक एम्पेरिकल रिजल्ट बोलते हैं इसको. इट इज
समथिंग जहां पर रेडियस जो होता है, ठीक है, इनफैक्ट आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन। हाँ, सो ये थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट जो है, इसमें कैसा रहता है दैट वॉल्यूम is or you can say the radius of nucleus is proportional to a raised to the power of 1/3, ठीक है। इसमें मैं यहीं पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 1/3, so r cube is directly proportional to a and volume will be then directly proportional to a, your atomic number। इस तरीके से ये एम्पेरिकल रिजल्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ खास यूज नहीं आता है कहीं पे। हाँ हाँ, सो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, because we will assume the nucleus to be spherical in nature। ये रदरफोर्ड के मॉडल से आता है हर्ष, वो मतलब ऐसे वो प्रिडिक्ट करते हैं ना कि आउट ऑफ द टोटल अल्फा पार्टिकल्स क्या फ्रैक्शन जो है वो मतलब लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है एंड क्या प्रोपोर्शन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, तो उससे दे गेट एन आइडिया कि कितना एटम खाली है और कितना पोर्शन या कितना फ्रैक्शन उसका न्यूक्लियस से ऑक्यूपाइड है, तो उससे एक जनरल आइडिया लगा था, ठीक है। सो दैट इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। एंड देन सुमित पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, इफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, हाँ, तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, इफ यू रिमेम्बर। लेट मी टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। याद हो तो एक एफडीएस में क्वेश्चन था जो आयोडीन एटम वाला था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने आपको बोला था कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगा, राइट, दिस वाज दैट क्वेश्चन, एफडीएस का फोर्थ क्वेश्चन। तो उसी लाइंस पर ये वाला क्वेश्चन भी है, दैट फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट विल बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, वन टू ब्रेक द बॉन्ड एंड द अदर or the remaining energy will be imparted as kinetic energy to the two atoms that will be there after breaking the bond। So one photon, one bond and two atoms को kinetic energy provide करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, in this we, because of lack of information, we have to assume that both the atoms get the same amount of kinetic energy। अगर आपको अलग अलग kinetic energy होगा एटम्स का, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस 8th क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे कि फोटोन की एनर्जी आपको पता पड़ गई क्योंकि उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, एंड बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर किलो जूल पर मोल में है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली जो बॉन्ड एनर्जी थी वो ऐसे किलो जूल पर मोल में है, तो उस किलो जूल पर मोल को आप एक्चुअली ब्रेक डाउन करो पर बॉन्ड, तो किलो जूल को पहले जूल में निकालो और फिर पर मोल को पर बॉन्ड के टर्म्स में निकालो, तो आपको ये एट एन इंडिविजुअल बॉन्ड लेवल कितना एनर्जी लगेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये सो दिस इज समथिंग, यहाँ पर यू कैन यूज द हेल्प ऑफ दिस इंटर कन्वर्जन। जैसे मैंने तो यहाँ पर क्या है मतलब एकदम बेसिक तरीके से करके बताया आपको दैट किलो जूल पर मोल को, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो यू कैन यूज दिस इंटर कन्वर्जन ऑल्सो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये थोड़ा हैंडी हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। सो आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पर दिस इज 240
अब ये किलो जूल पर मोल है, सो इंटू 1/96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अगर आपको ईवी में कैलकुलेशन करना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने थोड़ा जूल्स में कैलकुलेशन रखा, सो दैट शुड आल्सो वर्क फॉर यू। ठीक है, समझ में आया सुमित? ऑल राइट, सो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। नहीं, नाइन्थ नहीं बताऊंगा मैं ऋग्वेद, नाइन्थ आना चाहिए। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द क्लास एग्जाम्पल दैट वी हैव डन। नो कैन डू, नाइन्थ वाला आप करो खुद से। हर्ष कौन सा कह रहे हो? ये एट्थ वाला ही, एट्थ वाला मैंने एक्सप्लेन किया ना। थोड़ा फास्ट चला गया क्या तुम्हारे लिए? तुम YouTube की रिकॉर्डिंग 0.5x पे देखते हो ना? बहुत फास्ट लगता है तुम्हें सब। देखो, one photon comes in, strikes the molecule, breaks the bond, and then the remaining energy is imparted as kinetic energy to the atoms. बस तो यहाँ पर अब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी करा ना हम लोगों ने। अब इसमें कहाँ पे अटक गया बताओ? ये इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी। द ओनली थिंग विच आई एम एडवाइजिंग इज दैट अब यहाँ पर जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन है, इसको आप कर सकते हो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकते हो। एंड ये जो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिख देना। ठीक है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड, पर एटम भी चलेगा या पर बॉन्ड भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो तो किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तो उसको आप एक इंडिविजुअल बॉन्ड के लेवल पर या एक इंडिविजुअल एटम के लेवल पर भी लिख सकते हो। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, वही तो डीपीपी में सोल्यूशन है ना नीचे। तुम लोग मेरा टाइम डबल डबल बार यूज कर रहे हो। चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने दो, बहुत एक्सटेंड कर लिया तुम लोगों ने डाउट डिस्कशन। ऑल राइट, सो let's start today's discussion with the next topic in mind. So लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोर्स मॉडल में टर्म्स एंड मोल्स सब सिखा दिए थे। एंड ठीक है, तो बोर्स मॉडल का हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था। सो लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन विद atomic spectrum. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी फर्स्ट introduce the term spectrum. ठीक है, नाउ स्पेक्ट्रम जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन करके दिया हुआ है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ electromagnetic waves or electromagnetic radiations of different frequency or wavelength. ठीक है, that is what spectrum is. Now यहाँ पर ऑब्जर्व करना, before I get into the details of atomic spectrum, I would want to talk about some classification of spectrums. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना based on origin
we classify spectrum as emission spectrum or absorption spectrum. Okay, that is one way of classification basis the origin. Now, the differentiation would be pretty simple to understand. Emission spectrum will be the radiations that are emitted by an object. Okay. Absorption spectrum will be the radiations that are absorbed by an object. ठीक है, तो इनका मेजरमेंट कैसे होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना. दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर थॉट प्रोसेस. सो if I talk about emission spectrum, so what happens is, say there is an object, okay, and this object is emitting radiations. Okay. Now these radiations are made to pass through prism. Okay. Now what it does is that when these radiation pass through the prism, हाँ ठीक है, so when these radiations, these emitted radiations, they are made to pass through prism. So what prism does is it breaks down that radiation into its different components. How? So what happens is that because of the property of refraction, okay, and the angle at which the refraction happens, radiations of different wavelength have different angles of refraction. ठीक है, तो ये मैं एक piece of information आपको बता रहा हूँ, that angle of refraction, ठीक है, it is if I correctly remember, inversely proportional to lambda raised to the power of 4. ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, वैसे काम का नहीं है, बट in fact let me actually not make it complicated for you, otherwise आप लोग इसको भी याद करने लग जाओगे. याद नहीं करना है इसको. I would just say that the angle of refraction depends on wavelength. ठीक है, so different wavelength के light, they refract at different angles. ठीक है, एंड यहाँ पर आपका एक स्क्रीन रहेगा to help see these different wavelengths. Now, as a common, example that you would have seen in your day-to-day life is that when you have the sunlight, incident on a prism, then what happens is that you see that the sunlight gets broken down into its component of different colors. Right? ये आपने ऑब्जर्व किया होगा. तो हम लोग क्या देख रहे थे, सन का एमिशन स्पेक्ट्रम, कि सन ने जो रेडिएशन एमिट करी है उनको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे और प्रिज्म के सामने एक स्क्रीन या एक पेपर रख देंगे, तो उस पे यू विल सी द रेनबो, द different कलर्स. सो व्हाट प्रिज्म डिड was different वेवलेंथ की लाइट्स का different एंगल पर रिफ्रैक्शन हुआ, and then on the screen they were projected at different positions. ठीक है, so visible
लाइट जो रहेगी वो तो हमें अपनी आंखों से दिख जाएगी, बट जो दूसरे रेडिएशंस हैं, यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज, उनको फिर डिटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड डिटेक्टर्स लगेंगे। मतलब वो हम आंखों से देख नहीं पाएंगे, बट वी कैन स्टिल ऑब्जर्व देम यूजिंग सर्टेन अदर डिटेक्टर्स। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ एमिशन स्पेक्ट्रम इज नोटेड। वैसे ही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देख लेना एक बार के लिए। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे एक्सपेरिमेंटली नोट किया जाता है या देखा जाता है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। व्हाट वी डू इज वी पास व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट इज कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी या ऑल वेवलेंथ, ठीक है। एंड देन this white light is passed through a object, ठीक है। टिपिकली ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना रहेगा, दिस इज आइदर इन गैशियस और एक्वस फेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मेटल का आपको ऐसे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना रहेगा, तो मेटल के वेपर्स को आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। एंड वो वेपर्स इस पर्टिकुलर कंटेनर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड देन यू विल थ्रो द व्हाइट लाइट at this object. Now what will happen is that this light will pass through, but certain radiations would be absorbed, okay. So this is the, what I will say, the transmitted radiation devoid of lambdas that got absorbed by object, ठीक है। and this is then struck on prism, ठीक है। and it will again break down the components, and you will have the screen in front of you, and what you will find on the screen, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यू विल हैव लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। नाउ व्हाट यू विल हैव हियर इज समथिंग, बिकॉज व्हाइट लाइट में सारे रेडिएशंस थे, सो एक्सेप्ट फॉर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, बाकी सारे वेवलेंथ्स आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। सो इफ आई वाज टू लाइक ड्रॉ इट, देन कैसा दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कलाकारी दिखाने दो। Let me see if I can draw something. इसमें ऐसे लाइन कलर ही होता है क्या? इंसर्ट कलर नहीं होता इसके अंदर? नहीं, आई थॉट इसमें फिल कलर हो जाएगा। चलो हम लोग हमारा हाइलाइटर यूज करेंगे। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। एंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस आपको दिखेंगे, और उसमें डार्क स्पेसेस रहेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के, ठीक है। दीज विल बी द मिसिंग वेवलेंथ्स, बाकी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 गॉट
absorbed. ठीक है, so what we say is, यहाँ पर notice करना, यहाँ पर एक important statement कई बार use करा जाता है, ठीक है, and वो statement का language let me actually take from the booklet itself. ठीक है, statement का language आप लोग notice करना. The language comes in the following manner. हाँ, the missing wavelengths are the same ones that are observed in the corresponding emission spectrum. Okay, so they are kind of like complementary of each other. The emission spectrum and absorption spectrum. In fact, let me not use the line. वो यहाँ पर इतना अच्छे से लिखा हुआ नहीं है. Let me write it down. For an object, ठीक है, यहाँ पर to simplify it, say for an atom, ठीक है, the lines missing in absorption spectrum are the same as the ones observed in emission spectrum. Or are the same the lines missing in absorption spectrum are the same language थोड़ा सा अच्छा लिखने दो. For an object, the lines missing in the absorption spectrum are the same as the lines observed in emission spectrum. ठीक है, ऐसा क्यों होगा? Why will this be the case? Because यहाँ पर आपको बोर्ड्स मॉडल मैंने बता दिया है, तो बोर्ड्स मॉडल से आपको समझ में आएगा that एक एटम है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर इटसेल्फ. एक एटम है एंड एटम के अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज that when will the object absorb radiation? The object will absorb radiation, ठीक है, when the electron can get excited either to the higher energy orbits or can come out of the atom. ठीक है, otherwise the electron will not absorb the radiation. Okay, so let me put it in words. यहाँ पर let me put it in clear words. In an atom,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन would only absorb frequency or wavelength that corresponds to energy gap between orbits, that is leads to excitation or leads to ionization. ठीक है, ejection of electron out of atom. ठीक है, otherwise the electron would not interact with the photon, or you can say इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन और वेव नेचर में अगर आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड आपको हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स पता है, ठीक है, आपको आपने बोर्ज मॉडल से कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है, E1 is minus 13.6 EV, E2 is minus 3.4 EV, E3 is minus 1.5 EV, E4 is minus 0. कितना होता था, 0.85 होता था ना EV, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल्स आपको पता है। तो अभी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स से अ फोटोन इज कमिंग, ठीक है। सो अब say if energy of photon is 5 eV, ठीक है, then no interaction will happen, ठीक है। As you can see, if the energy of photon is 5 eV, this means no interaction। क्यों? Because 1 से 2 जाने के लिए एटलीस्ट 10.2 eV का फोटोन लगेगा, ठीक है। 1 से 3 जाने के लिए कितना, 12.09 eV का फोटोन लगेगा। 1 से 4 जाने के लिए कितना दिख रहा है ये, 13.6 माइनस 0.85 कितना होता है? थोड़ा मैथ्स करो यार तुम लोग भी, सब कुछ मुझ पे छोड़ दोगे। 12.75, सो अगर इतना ही एनर्जी का फोटोन रहेगा तो ही हमारा इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। सो अगर 5 eV का आपने फोटोन स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, तो देयर विल बी नो इंटरैक्शन, ठीक है, देयर विल बी नो इंटरैक्शन। अच्छा, इफ से एनर्जी ऑफ फोटोन is
10.2 eV. ठीक है, then what will happen? Excitation. कहां से कहां? From n equal to 1 to n equal to 2. ठीक है, ये फोटोन को अब्सॉर्ब करके हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा n equal to 2 में, ठीक है, because that is not the preferred state. An electron would always prefer to come back to a lower energy state. तो वो थोड़ी देर में डीएक्साइट भी हो जाएगा, वापस से n equal to 1 में आ जाएगा, but it will get excited first. ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, if energy of photon is 11 eV, तो आपके दिमाग में एक थॉट आ सकता है कि ठीक है, अब 11 eV का फोटोन आ रहा है तो उसमें से 10.2 eV यूज करके एक्साइट हो जाए और बचा हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी नो इंटरैक्शन, बिकॉज द एटम इज नॉट, द इलेक्ट्रॉन इज स्टिल नॉट फ्री। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि बचा हुआ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, नहीं, ऐसा होता नहीं है। वी सी दैट ओनली the photon that helps the electron move on to the next energy level, that is the one that is absorbed. ठीक है, अगर यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन आपने डाला होता से 12.09 eV, तो यहाँ पर ये फोटोन के साथ इंटरेक्शन होता, एक्साइटेशन होता, एंड एक्साइटेशन होता फ्रॉम n equal to 1 to n equal to 3, सीधे 1 से 3 में जंप कर जाता। ठीक है, एंड यस, दिस इज व्हाट इज ऑल क्वांटाइजेशन इज, दैट एटॉमिक स्केल पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई एनर्जी ऐसे रैंडमली एमिट या अब्सॉर्ब नहीं हो रही होती है, इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन डिस्क्रीट यूनिट्स ओनली। दिस इज व्हाट वाज द बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टाइम पीरियड, कि ऐसा नहीं है ना कि हमने जैसे ट्यूबलाइट जला दी तो ट्यूबलाइट से हम लोग बोल रहे हैं 1 जूल, 1.5 जूल, 2 जूल, 2.5 जूल, लाइक एनर्जी बीच में कुछ भी बोल दो, बट एट एन एटॉमिक स्केल वी डोंट फाइंड interactions happening at any continuous value of energy. We find them to be in discrete units or quantized manner. ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, if energy of photon is greater than equal to 13.6 eV, तो यहाँ पर क्या होगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 13.6 eV है, तो इसका या इससे ज्यादा एनर्जी होगा तो आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन that is n equal to 1 से, we say that n equal to infinity, far far away इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग एनर्जी, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी इज इम्पार्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, तो जो बचा हुआ एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी is imparted as kinetic energy to ejected electron। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया that what we are saying now, that जो वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होगी वही एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल आपको लिया कि ग्राउंड स्टेट में लेट्स से हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है एंड we have certain radiations striking that atom
only particular radiations will be absorbed, which can help in either excitation or ionization. ठीक है, या तो एक्साइट करेंगे या फिर आयोनाइज करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो इंटरेक्शन. ठीक है. अच्छा, अब जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैंने जैसा आपको बताया कि लेट्स से ये 10.2 EV वाला फोटोन अब्जॉर्ब हुआ. ठीक है, अब 10.2 EV वाला फोटोन अब्जॉर्ब हो गया, बट अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके n=2 में चला गया. ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा टाइम रहेगा नहीं वहां पर, तो वापस से डी एक्साइट होगा, एंड डी एक्साइट होने पर सेम वेवलेंथ, वो सेम फोटोन, सेम एनर्जी का फोटोन एमिट भी कर देगा. ठीक है, तो जो रेडिएशंस एटम अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, वही रेडिएशंस एटम एमिट भी करता है. So this is something which becomes like a very unique property of an atom of an element. So hydrogen as an atom will absorb some particular wavelengths only, lambda 1, lambda 2, lambda 3 only. ठीक है, and emit those wavelengths only. बाकी wavelengths के साथ में हाइड्रोजन एटम इंटरैक्ट नहीं करेगा. वैसे ही से हीलियम एटम हो गया, तो हीलियम एटम will interact with some lambda 4, lambda 5 maybe. It will not interact with other wavelengths. So what we understand is that the radiations that are absorbed or emitted by an atom of an element are its unique property. It is like a signature, and it will be unique for a type of atom. So जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार बोलते हैं, जैसे जुपिटर के कोई मून है, मतलब टाइटन है, टाइटन के ऊपर बोलते हैं कि मीथेन प्रेजेंट है, बहुत सारा मीथेन का सी है पूरा. तो वो कैसे पता पड़ा? कोई जाके थोड़ी ना वहां पे टाइटन से सैंपल कलेक्ट करके लेके आया कि देखो ये क्या रखा है टाइटन के ऊपर. व्हाट साइंटिस्ट डिड वाज दैट टाइटन से आने वाली जो रेडिएशंस है उनको स्टडी करा, एंड इन दैट स्पेक्ट्रम दैट दे स्टडीड, दैट दे फाउंड कि उसमें मीथेन का सिग्नेचर मिल रहा है. मतलब मीथेन जो रेडिएशंस एमिट या अब्सॉर्ब करता है, वो रेडिएशंस मिल रहे हैं टाइटन के स्पेक्ट्रम में. सो दे कंक्लूडेड कि भाई टाइटन पर मीथेन बहुत ज्यादा अबंडेंस में है. ठीक है, सो दिस इज a very very important property that helps us in studying atoms and molecules, their absorption and emission spectrum. तो आपको couple of points जो I want you to be very clear on. ठीक है, the definition of spectrum, the classification that we have done here, emission and absorption spectrum. emission spectrum कैसे मेजर किया जा रहा है, absorption spectrum कैसे मेजर किया जा रहा है, उसके बारे में एक आइडिया. एंड ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, that emission and absorption spectrum are like complementary of each other. जो रेडिएशंस आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेंगे, वही रेडिएशंस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग रहेंगे फॉर अ गिवन एटम. ये पार्ट समझ में आना चाहिए. एंड इट विल बी बिकॉज द radiations that are absorbed or emitted, they correspond to the energy gap.
between the orbits. ठीक है, सो जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब होने में, जो एनर्जी के फोटॉन्स अब्जॉर्ब होंगे, वही एनर्जी के फोटॉन्स इमिट भी होंगे जब डी एक्साइटेशन होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो. ऑलराइट, ग्रेट. नाउ, अच्छा इसने कुछ डाला है. हाँ, कैसे पता चलता है कि एक्साइटेशन हुआ? यहाँ पर देखना ना, जो मेजरमेंट करने का तरीका है, हम लोगों ने क्या है, व्हाइट लाइट भेजा. व्हाइट लाइट मतलब ऑल फ्रीक्वेंसीज या ऑल वेवलेंथ्स वर सेंट. ठीक है, बट जो ट्रांसमिटेड लाइट आई यहाँ पर, इसमें देयर विल बी सर्टेन रेडिएशंस दैट वुड बी मिसिंग ना. तो जब हम उसको प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे एंड स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ डार्क स्पेसेस आएंगे, डार्क रीजन्स आएंगे, यू कैन से. So they will be the missing wavelength. ठीक है. अच्छा, फिर हर्ष का डाउट है, इफ वी अप्लाई 13.6 eV then the electron goes to infinity, so after some time it will return to its normal state from infinity. नहीं नहीं, एक बार आयोनाइज हो गया इलेक्ट्रॉन, then what we say is that it has left the atom, then it has become a free electron. So atom से आयन बन गया और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया. That free electron is now no more under the influence of the nucleus of atom. ठीक है. शेखर, यही तो मैं समझा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Emission spectrum is a collection of the emitted radiations, while absorption spectrum is a collection of all radiations minus the ones that are absorbed by the object. ठीक है. हाँ हर्ष, रावी आपका डाउट नहीं समझ में आया मुझे. This absorption and emission spectrum is only seen when the electron is ionized. नहीं, ionized नहीं, when the electron is excited. आयोनाइज कर दिया तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ही भेज दिया. हमें एक्साइट करना है उसको टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स सच दैट इट कैन डी एक्साइट बैक ऑल्सो. हाँ, अगर कंटिन्यूसली आप एक एटम को एक्सपोज करोगे एंड रेडिएशंस आप इतने एनर्जी के लगाओगे दैट दे कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो हो सकता है दैट विद टाइम सारे के सारे एटम्स गेट कन्वर्टेड इनटू आयन. ठीक है. ऑलराइट, सो आप लोगों को स्पेक्ट्रम समझ में आया, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया. अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना एक और ऑब्जर्वेशन देखना. हाँ रावी, आप थोड़ा देर वेट करो, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ. ठीक है, आई विल गिव यू द सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट with which we are going to emit observe the atomic spectrum. ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ. प्रथमेश, तुम क्या पूछ रहे हो मतलब?
हाँ मतलब आयंस में ही कन्वर्ट होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम, तुम अलग साईफाई मूवी मत बनाओ यहाँ पर। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब नोटिस करना एक क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर हुआ, ठीक है, विच वॉज बेसिस द ओरिजिन। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन वी हैव एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक और क्विक क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ड ऑन नेचर we can classify spectrum as continuous and discontinuous। ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस को हम लोग डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसमें भी दो पार्ट होते हैं, देयर इज लाइन एंड देयर इज बैंड। ठीक है, सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या हो गया? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में एज द वर्ड सेज दैट देयर इज नो गैप। मतलब जैसे सन है, सन इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, सन इज अ ब्लैक बॉडी। दिस implies दैट जो सन का एमिशन स्पेक्ट्रम रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सन इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इस केस में व्हाट वी विल सी इज दैट सन से एमिट होने वाली जो रेडिएशंस रहेंगी, ठीक है, इनको आप कलेक्ट करोगे एक प्रिज्म के थ्रू एंड प्रोजेक्ट करोगे एक स्क्रीन के ऊपर। सो व्हाट यू विल फाइंड ऑन दैट स्क्रीन इज लाइक कंटिन्यूसली एक के बाद एक कलर्स दिखते जाएंगे आपको। ठीक है, वायलेट दिखेगा, फिर उसके बाद में कोई गैप नहीं होगा। अभी ब्लू कर देते हैं यार, ब्लू योर, ब्लू के बाद में ग्रीन दिखेगा। ठीक है, फिर येलो दिखेगा, फिर आपको ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, एंड देन रेड भी दिख जाएगा। सो देयर विल बी नो गैप इन बिटवीन, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम और यू कैन से एमिशन स्पेक्ट्रम will be a discontinuous one। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम is made up of lines and bands। ठीक है, बैंड्स एक्चुअली क्या हो जाएंगे? क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, जिनको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। सो इसमें जो सेटअप रहेगा
लाइक वो दैट विल बी समथिंग ऑफ दिस नेचर कि एक ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, ठीक है, एंड यू अप्लाई अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ग्लास ट्यूब, ठीक है, हाई वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, ये एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम्स दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप हाइड्रोजन गैस लोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बट बिकॉज ऑफ द हाई पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू विल अप्लाई, हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड इन सब का रेडिएशंस, ठीक है, हमने यहाँ पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, हाई वोल्टेज अप्लाइड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर हमने इसको बंद कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा होगा दैट द इलेक्ट्रॉन्स excited electrons return back to ground state by emitting radiations, ठीक है, एंड यही emitted radiations को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, थ्रू प्रिज्म, एंड यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये जो स्क्रीन रहेगा, ठीक है, इस पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है, दैट विल बी सर्टेन लाइंस, ठीक है, sometimes the lines will be very closely spaced to each other, they might look like a band, then some lines, then some bands, इस तरीके से एक discontinuous spectrum ऑब्जर्व होगा। ये समझ में आया आपको? सो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं अभी के लिए इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम प्राइमरीली, ठीक है। इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन दोनों का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें इन दोनों का मिलेगा, बट उसमें से हाइड्रोजन का कैसा होगा वो अलग से आइसोलेट करके थ्रू सम अदर टेक्निक्स कि दैट दीज लाइंस करस्पॉन्ड टू हाइड्रोजन, दीज लाइन करस्पॉन्ड्स टू H2 मॉलिक्यूल, वो सब चीज़ों को वो सब टेक्निक्स की डिटेल में मत जाना, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना फोकस करो दैट somehow what we are observing is just हाइड्रोजन एटम, ठीक है, नॉट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का अलग होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हाँ, आस्था का डाउट है दैट आर दीज लाइंस ब्लैक और ऑफ सम कलर, सो आस्था डिपेंड करेगा ना कि कौन सा वेवलेंथ का लाइन है। अगर विजिबल रीजन में रहेगा तो यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसा आपने सनलाइट का देखा, ठीक है। अगर यूवी रेज में होगा या इंफ्रारेड रीजन में होगा तो वो आपको आंखों से नहीं दिखेगा, देन यू विल हैव सर्टेन स्पेशल डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट दोज वेवलेंथ्स, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू गेट इन द सिमेंटिक्स ऑफ इट कि कैसे डिजाइन करा जाता है, हाउ डू वी डिटेक्ट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, that is an off topic thing, मतलब that is something which is more of experimental physics that you would explore if you get into the higher studies of doing this experiment by yourself, ठीक है। अभी के लिए अपने लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, there are some ways in which you can detect,
ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया सबको? दैट बेसिस द एक सेकेंड, बेसिस द नेचर, ठीक है, दिस इज समथिंग, पहले बेस्ड ऑन ओरिजिन था, यहाँ पर बेस्ड ऑन नेचर वी कैन क्लासिफाई स्पेक्ट्रम एज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अभी ब्लैक बॉडीज का रेडिएशन कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, देयर आर नो मिसिंग वेवलेंथ्स और एनीथिंग, एंड एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का जब हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं तो वी फाइंड इट टू बी discontinuous. In fact, this is what the drawback of wave theory of light was. जैसे मैंने आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था that हम लोग जब वेव थ्योरी डिस्कस कर रहे थे आज से 3-4 क्लास पहले, कभी तो इसके भी पहले था, हाँ राइट, ये मैंने आपको बताया था दैट सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी था। ठीक है, so this atomic spectrum was something which was not being satisfactorily explained by the wave theory of light because wave theory could not comprehend this discontinuous spectrum. मतलब why hydrogen atom was emitting or absorbing only particular wavelengths, मतलब ऐसा था that आप irrespective of the conditions, ठीक है, irrespective of the geography, मतलब आप इंडिया में एक्सपेरिमेंट करो कि यूएस में एक्सपेरिमेंट करो, यूरोप में एक्सपेरिमेंट करो, लाइक यही बस वेवलेंथ्स ऑब्जर्व हो रही हैं व्हेन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वाज बीइंग ऑब्जर्व, मतलब जस्ट दीज वेवलेंथ्स, अदर वेवलेंथ्स वर नॉट बीइंग ऑब्जर्व, सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट satisfactorily explained by the wave theory of light, that why matter is only emitting particular wavelengths, why it is only absorbing particular wavelengths, because iske pehle like the energy that was supposed to be given or taken was supposed to be continuous, then why these discrete wavelengths that are being observed? And this is something that Niels Bohr explains through his model, that it is because of quantized energy levels that electrons are present around the atom that we see only these particular wavelengths that are emitted or absorbed. ठीक है, मैं अभी उसके ऊपर डिटेल में वही डिस्कशन करूंगा, ठीक है, when I'm going to talk about the hydrogen spectrum, but ये स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, you have any doubts तो आप मुझे बताओ। All right, so I think line and band spectrum, Elena, the thing is that if you have very closely spaced lines, ठीक है, which you cannot resolve, तो आप उसको, वो आपको बैंड की तरह दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे, अब आप नोटिस कर रहे हो दैट 1 से 2 जाने में 10.2 ईवी लगा, बट 1 से 3 जाने में 12.09 ईवी लगा, एंड 1 से 4 जाने में 12.75 ईवी लगा। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिफ्थ ऑर्बिट जाने में लगेगा तो वो 12.7 के 75 के और पास आ जाएगा। ठीक है, 1 से 6 जाने का, 1 से 5 जाने का जो एनर्जी रहेगा वो काफी, उनके बीच का डिफरेंस काफी कम होता जाएगा। 1 से 7 जाना है तो जो 1 से 6 में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और 1 से 7 में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट काफी पास आने लगेगा। तो जो इनके वेवलेंथ्स होंगे दे विल बी वेरी क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, एंड दीज क्लोजली स्पेस्ड लाइंस दे अपीयर टू बी लाइक बैंड ओनली, तो इनको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं।
ठीक है रवि, आई विल केटर टू योर डाउट इन अ वाइल, मतलब अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो यू विल सी दैट हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में some radiations will belong to UV region, some will belong to visible region, and some will belong to infrared region. ठीक है. All right. So now that you have understood the word spectrum, let me now take the heading of hydrogen spectrum. ठीक है. So यहाँ पर आप observe करना, using this setup जो मैंने अभी आपको ऊपर explain किया, ठीक है, the excited electrons in hydrogen atom return back to ground state by emitting photons of different wavelength or frequency corresponding to the energy gap between orbits. ठीक है. अब in a very crude sense, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर n इक्वल टू 4 में चला गया, ठीक है, राइट, इसको एनर्जी मिली एंड इट गॉट एक्साइटेड. अब एक्साइट होने के बाद में, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली n इक्वल टू 1 पे आए, ठीक है, ये हो सकता है कि पहले n इक्वल टू 3 पे जाए और फिर 3 से 1 पे आए, हो सकता है कि ये 3 से जाए, 3 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे आए, ठीक है, हो सकता है कि ये पहले 4 से 2 पे जाए और फिर 2 से 1 पे आए, ठीक है. देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज इन विच इट कैन अंडरगो डी एक्साइटेशन ऑल्सो, ठीक है. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डी एक्साइटेशन हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है, लेट मी राइट देम. These are D excitations. They will correspond to different wavelengths or different frequencies. ठीक है. So let's study them in a more structured manner. And that is what we call as hydrogen spectrum. So what I would say here is that a structured study of these emitted radiations is called hydrogen spectrum. ठीक है. ये तो अब हम बोल सकते हैं, जब डिस्कवर हो रहे थे तब ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर पहले तो क्या है, जो ह्यूमन आई को विजिबल थे वो रेडिएशन से दिखे, फिर धीरे धीरे डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप हुई, तो लोगों को पता पड़ा कि अरे
इसमें से तो यूवी रेडिएशंस भी आ रहे हैं या इसमें से इंफ्रा रेडिएशंस भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये पिक्चर कंप्लीट होती गई that what are the different types of radiations that are being emitted by hydrogen spectrum। बट अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक पूरा फाइनल अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं, एंड दैट फाइनल अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग दैट वी आर पुटिंग अ स्ट्रक्चर टू। ठीक है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सो लेट मी ठीक है, सो मैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ। Say this is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, 5, 6, 7, and so this is n equal to infinity। ठीक है, सो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो एक्साइट होके किसी भी एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो डी एक्साइट होंगे तो रेडिएशन एमिट होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, all d excitations which happen to n equal to 1, ठीक है, all d excitations that happen to n equal to 1, इनको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, हम लोग इनको सेग्रीगेट कर देंगे बेसिकली। ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 1, इनको हम एक अलग बकेट में लिख देंगे। ठीक है, ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 2, इनको हम एक अलग बकेट में रख देंगे। All d excitations happening to n equal to 3, ठीक है, इनको हम एक अलग बकेट में लिख देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग अब इसको स्टडी करने जा रहे हैं और उनका एक अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, ये जो ऑल n इक्वल टू 1 वाले आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज या फिर फर्स्ट सीरीज या फिर के सीरीज। ठीक है,
K as in because n equal to 1 को हम लोग K शेल भी बोलते हैं ना. ये जो n equal to 2 पे डी एक्साइटेशन होके आ रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज. ठीक है, बामर सीरीज या फिर सेकेंड सीरीज, और यू कैन गिव द नेम एल सीरीज. ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, लास्ट वाला भी ड्रॉ करना. इसको ऐसे डैश डैश करके ड्रॉ कर देना. ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, मैं अभी पूरा आगे का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करके आपके लिए लिख दूंगा. बट अब इसको जो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, अब इसकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट व्हाट विल बी द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडिएशंस. ठीक है, और इनको कैसे निकाला गया एंड कैसे बोर्स मॉडल से वैलिडेट करा गया. ठीक है, इनफैक्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट पहले ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट आया था. ठीक है, बाद में बोर्स मॉडल ने इसको वैलिडेट करा था. तो what happened was that the scientists, they had this setup, ठीक है, and they did this experiment and they found out these different wavelengths. ठीक है, and the scientists at that point in time उनको ऐसे पूरी ये वेवलेंथ नहीं मिली थी. ठीक है, जैसे एक्चुअली सबसे पहले ये बामर सीरीज जो ये नाम लिखे ना, these are named after the scientists who discovered them. तो सबसे पहले बामर सीरीज मिली क्योंकि बामर सीरीज के अंदर विजिबल रीजन के रेडिएशंस होते हैं. ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, ये जो डी एक्साइटेशन मैंने ड्रॉ करे हैं, इन डी एक्साइटेशन से जो फोटॉन्स एमिट होते हैं वो फोटॉन का वेवलेंथ विजिबल रीजन में आता है. ठीक है, कुछ कुछ का. तो सबसे पहले ये बामर सीरीज डिस्कवर हुई. ठीक है, फिर उसके बाद में लाइमन सीरीज डिस्कवर हुई या फिर शायद उसके आगे वाली सीरीज डिस्कवर हुई. बट दीज वर विद टाइम डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट और उनके नाम पर ही ये सीरीज रखी गई है. ठीक है, एंड इन सब की वेवलेंथ इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने नोट करके ऑब्जर्व करके एक जगह टैबुलेट करी कि देखो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है उससे ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑब्जर्व हो रही है. ठीक है, एंड वो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था, ठीक है, डिफरेंट लाइंस का, दिस मैच्ड with a theoretical calculation from what Bohr did. बोर ने बोला कि ये मेरा एटम है. ठीक है, ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट एनर्जी गैप्स जो होंगे उनके करस्पॉन्डिंग ये रेडिएशंस के वेवलेंथ्स और ये वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट या अब्जॉर्ब होने चाहिए. एंड ये जो थियोरेटिकल वेवलेंथ्स बोर ने प्रेडिक्ट करे या बोर ने कैलकुलेट करे, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से काफी मैच कर रहे थे. So that is where Bohr's model got its experimental validation from. That what Bohr had hypothesized, what Bohr had developed as a model for the atom is matching with what we are observing as experimental observation. ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या करा गया, वो डिटेल्स में आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ. ठीक है, अभी के लिए लेट मी टेक अ स्टॉप हियर इटसेल्फ. We have already reached the end of our lecture. So I am going to talk about this hydrogen spectrum in a little bit more detail in the next class. ठीक है, इसमें फिर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ. मैंने आज कुछ खास न्यूमेरिकल्स आपको कराए नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क जरूर भेजूंगा. ठीक है, I'll send you some homework today itself and that will be from what we have studied before.
ठीक है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड देन इसमें कुछ कुछ टर्म्स रहेंगे, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सीरीज लिमिट, ये सब टर्म्स को यूज करके कैसे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर हियर इटसेल्फ। कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को किसी को? हाँ हाँ, ये लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फन, हम्फ्री, ये सब कराऊंगा मैं आपको। ऑल राइट, चलो, टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो।